السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری پارو چڑیل کی کہانی۔ ان دنوں میری عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ عین میرے شباب کا دور تھا۔ میں فطرتاً عیاش تھا۔ شہر کی کئی لڑکیاں اور ماڈل گرل میرے بیڈ روم کی زینت بن چکی تھیں۔ دنیا کے تقریباً تمام عیب مجھ میں پائے جاتے تھے۔ میرا دل گناہوں کی سیاہی سے کالا ہو چکا تھا۔ میں نے انہی عیاشیوں میں پیسہ پانی کی طرح بہایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ بزنس ڈاؤن ہوتا چلا گیا۔ میں نے MBA کیا ہوا تھا، جبکہ چھوٹے بھائی خاقان ابھی زیر تعلیم تھا۔ سو میں نے اپنے شہر سے دور قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور کراچی کی انٹرنیشنل منڈی میں اپنی فرم کو متعارف کروایا، جس میں مجھے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ انہی دنوں بارو سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ بارو کپڑے کی ایک انٹرنیشنل فرم کے تاجر کی سیکرٹری تھی۔ میری مردانہ وجاہت تھی یا پھر پرسنالٹی کہ وہ ایک دو ملاقاتوں میں ہی میری گہری دوست بن گئی تھی۔ جو ہی کلاک نے 12 بجنے کا اعلان کیا، فلیٹ کے دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی۔ میں نے تقریباً بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے بارو اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی میرے سوئے ہوئے جذبات اچانک مچل اٹھے۔ جب میں جاگا تو میں نے بارو کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے بھی آج سنڈے تھا اور بارو کو آج دفتر سے چھٹی تھی۔ خلاف توقع میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا اور میں خود کو پہلے کی نسبت بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ یہ میرے لیے کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ میں نے کسی لڑکی کا قرب حاصل کیا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے اٹھا اور واش روم میں داخل ہو گیا۔ فریش ہو کر میں نے چائے کے ساتھ ڈسپرین لی اور دفتر چلا گیا۔ اس روز مجھے ایک دوا آبر میٹنگ میں شرکت کرنا تھی، اس لیے دفتر جانا بھی ضروری تھا۔ شام کو میں کافی لیٹ ہو گیا۔ میں کپڑے چینج کیے بغیر ذرا سستانے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور کھانے کی زیادتی کے باعث میری آنکھ لگ گئی۔ یہ کسی جوان لڑکی کے جسم کا لمس تھا، جس کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ لائٹ بھی بند تھی۔ میں نے غیر ارادی طور پر اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس دوشیزہ کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہے، جس کو چومنے کے باعث میرے منہ کا ذائقہ نیم کڑوا ہو چکا تھا۔ عین اسی لمحے بجلی کڑکی اور فلیٹ میں قدرے روشنی ہوئی تو بے اختیار میرے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس دوشیزہ کے چہرے کی جگہ کھوپڑی اور ہاتھوں کی جگہ 2 بڑے بڑے پنجر تھے، جبکہ باقی جسم عورت کا ہی تھا۔ اس کے آہنی ہاتھوں کی گرفت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ جھٹکے سے میں نے خود کو اس سے علیحدہ کرنا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ ڈائن نما عورت کسی جنونی لڑکی کی طرح میرے جسم کو نوچتی رہی۔ کوئی ہوئے گھنٹے بعد جب اس کے من کی آگ بجھ گئی تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس لیے میں ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہو گیا۔ خوف اور ڈر کی وجہ سے میرا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔
फिर अचानक लाइट आ गई तो मैंने खौफजदा नज़रों से बेड की तरफ देखा, मगर बेड तो खाली हो चुका था। खौफ की शिद्दत से मेरी सारी रात मैं सो ना सका। जिस्म में दर्द के बायस मेरा टेम्परेचर भी बढ़ गया। दूसरे दिन मैं दफ्तर भी ना जा सका। दोपहर को बारो का फ़ोन आया तो मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए दफ्तर नहीं जा सका। कोई आधे घंटे बाद बारो डॉक्टर के साथ मेरे फ्लैट में मौजूद थी। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कुछ मेडिसिन लिख दी और कहा कि काम की ज़्यादती की वजह से जिस्म में हरारत से डॉक्टर वापस चला गया और बारो मेडिसिन लेने के लिए बाज़ार चली गई। इस दौरान प्यास से मेरा हल खुश्क हो चुका था और फिर इसी गरज से मैंने बिस्तर पर से उठना चाहा, मगर चकरा कर फिर बिस्तर पर दोबारा उठा और दीवार के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आखिरकार फ्रीज़र तक पहुंचने में कामयाब हो गया। फ्रीज़र से जो ही बोतल उठाई और मुंह को लगाई, पहले ही घोंट ने यह साबित कर दिया कि ये पानी नहीं है, क्योंकि उसकी बू और जायका बिल्कुल खून जैसा था। जो ही मैंने पानी के छींटे हाथों पर गिरे तो शक यकीन में बदल गया कि बोतल के अंदर वाकई खून भरा हुआ है। मैं फिर दीवार का सहारा लेकर चलता हुआ नल तक गया। नल खोला तो हैरत और खौफ का एक और शदीद झटका मुझे लगा, क्योंकि उसमें से भी मतवातर खून निकल रहा था। या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने बेबसी से कहा। आज जिंदगी में पहली बार मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद बारो मेडिसिन हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई तो मैंने अपनी सारी आप बीती उसे सुना डाली। जैसे जैसे बारो मेरी बातें सुनती जा रही थी, उसके चेहरे की रंगत तब्दील होती जा रही थी और मेरे देखते ही देखते वो रात वाली डायनुमा औरत बन गई और बोली, काशी मैं भी वो जिनजादी हूँ जो बरसों से प्यासी हूँ। मेरी जन्मों की प्यास सिर्फ तुम ही बुझा सकते हो। आओ मुझे प्यार करो, काशी आगे बढ़ो। ये कहकर वो दीवाना वार मेरे साथ लिपट गई। मैं बिल्कुल बेसुध बेड पर लेट गया और उसकी मसलसल झंझोड़ झपट से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो शाम का मलजगा अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता दिन की सफ़ेदी को निगल रहा था। फ्लैट का दरवाज़ा खुला था, जिसका मतलब था कि बारो अपनी प्यास बुझा कर जा चुकी है। मैं बिस्तर से उठा और डगमगाते कदमों से अपना मोबाइल उठाया और अब्बू को फ़ोन किया और उन्हें अपनी हालत ज़ार बताई। इस दौरान मुझ पर मुसलसल कंपकपाहट तारी रही। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और अपनी हालत संभालने को कहा। उन्हें शायद मेरी कैफियत का अंदाज़ा था, तभी उन्होंने कहा कि आज शाम की परवाज़ से वो कराची आ रहे हैं। मेरा जिस्म खौफ की शिद्दत और बुखार की तमाज़त से तप रहा था। अबू की बातों से दिल को तसल्ली हुई, मगर आज की रात मुझे अकेले बसर करना थी और अगर इस दौरान में वो यहाँ आ जाती तो मुझ में इतनी सकत भी ना थी कि मैं उसकी प्यास बुझा सकता। वो तो कोई बरसों की प्यासी बदरू थी। सो मैंने ये रात फ्लैट से बाहर बसर करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने ये रात किसी रेस्टोरेंट में गुजारने का इरादा किया। मैंने फ्लैट का दरवाज़ा लॉक किया और बाहर निकल गया और फिर एक आला दर्जे का होटल जिसके साथ नेट कैफ़े भी था। होटल के रिफ्रेशमेंट हॉल में एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा की धुन बजा रहा था। काउंटर पर मैंने कमरे की चाबी ली और कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते ही मैं बेड पर दराज हो गया। उस वक़्त भी मेरा जिस्म बुखार की हरारत से तप रहा था। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई। सर, खाने में क्या पसंद करेंगे?
लड़की ने मौदबाना लहजे में कहा, चाय का एक कप पिला देने, खाने में शायद मैं ना खा सकूं। मैंने कहा तो वो लड़की ओके सर कहकर उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वही लड़की चाय की ट्रेली धकेलते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसने चाय बनाना चाही मगर मैंने उसे मना कर दिया। सर, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। ये कहकर वो वापस लौट गई और फिर मैंने फारिग होकर अब्बू से रब्ता किया और उन्हें होटल का नाम और कमरा नंबर लिख दिया ताकि वो सीधे होटल ही आ जाएं। रात बीत चुकी थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। थकन और कमज़ोरी की वजह से जिस्म में जगह जगह दर्द हो रहा था। होटल में मुकम्मल सन्नाटा तारी था। उस वक़्त अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। इससे पहले कि मैं सूरत हाल समझता, बारो कमरे में दाखिल हुई। खौफ की शिद्दत से मेरी आवाज़ भी ना निकल सकी और मैं होटल इंतज़ामिया को अपनी मदद को बुला सकता। तुम समझते हो कि तुम भाग जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है, उसने कहर से डूबी हुई आवाज़ में कहा कि और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हस्पताल के एक एमरजेंसी वार्ड में पाया जहां डॉक्टर के अलावा अब्बू भी मौजूद थे। मेरे चेहरे और जिस्म पर जा बजा खराशें लगी हुई थी जो कि इस बात की गवाही दे रही थी कि पारो अपना काम करके जा चुकी है। अब्बू ने बताया कि डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे जिस्म में खून ना होने के बराबर था और खून की कमज़ोरी के बायस तुम बेहोश हो गए और तुम्हें खून की 3 बोतलें लग चुकी हैं। अब्बू ने कहा कि शाम को मेरे पीर साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। शाम तक मेरी तबीयत संभल चुकी थी और शाम के 7 बजे के करीब बारिश बुज़ुर्ग अब्बू के साथ कमरे में दाखिल हुए। नूर उनके चेहरे पर झलक रहा था। यकीनन ये पीर साहब, मैंने दिल में कहा और मैंने उनको सलाम किया और उनकी ताज़ीम के लिए उठकर बैठ गया। मैंने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और कहा, मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे अब्बू सब कुछ बता चुके हैं। चंद सानिये खामोश रहने के बाद फिर गोया हुए। सबसे पहली बात तो ये कि तुम शादी कर लो और गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ फरमा देगा। पीर साहब की आंखों में अजीब सा नूर था और उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। पीर साहब के साथ भी मैंने और अब्बू ने इशा की नमाज अदा की। आज जाने कितने सालों बाद रब्बे जुल जलाल के सामने झुका था। नमाज के बाद मैंने अल्लाह के हजूर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। पीर साहब एक दायरे में बैठे कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे और अब्बू सोफ़े पर बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और बारो कमरे में दाखिल हुई। खौफ की एक तेज़ लहर मेरा जिस्म गुनगुनाने लगा और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। पीर साहब बिल्कुल साकत कुछ पढ़ते रहे और बारो ने अभी तक पीर साहब को नहीं देखा था। यूं ही वो मेरे करीब आई, किसी जनूनी लड़की की तरह मुझसे लिपट गई और अपनी आहनी गिरफ्त से मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी कि मेरी बढ़ती हुई दहशत शदीद से शदीद तर हो गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुअज्जिन फजर की अजान दे रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जबकि पीर साहब बेदस्तूर वैसे ही बैठे हुए थे और अब्बू मेरे सरहाने खड़े थे। पीर साहब के इशारे पर मैं लड़खड़ाते कदमों से उठा, गुस्ल किया, वज़ू किया और नमाज अदा की। नमाज से फारग होने के बाद मैं खुद को पहले की निस्बत काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। ना ही जिस्म में दर्द हो रहा था और ना ही जिस्म पर कोई खराश थी। पीर साहब मेरा हाथ थामते हुए बोले, बेटा, बारो एक जिन्नज़ादी थी,
جو تمہاری عاشق بن گئی تھی۔ چند ماہ قبل تم نے ویرانے میں نیلم نامی لڑکی سے گناہ کیا تھا۔ عین اس وقت بارو بھی قریبی درخت پر موجود تھی۔ تمہاری مردانہ وجاہت اور حسن دیکھ کر تم پر مر مٹی اور تمہارا قرب پانے کی خاطر بارو کو مار کر اس کے جسم میں تحلیل ہوئی، اور آج اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور آئندہ کبھی بھی تم کو تنگ نہ کر سکے گی۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔